breaking news coming in on the show. Defence Minister Rajnath Singh has slammed Pakistan, saying that Pakistani armed forces have no intentions for peace. He said that Pakistan Army recently expanded its military infrastructure in areas adjacent to Sir Creek reveals its intention. He said that any misadventure attempted from the Pakistani side in the Sir Creek area will receive a decisive response that will be both historic and will change the geography of the area. He added that Pakistan should remember that one route to Karachi passes through the creek as well. All right, there you have it. The Defence Minister slamming Pakistan yet again for what he calls a build-up in infrastructure adjacent to the Sir Creek, which Rajnath Singh, the Defence Minister, says reveals the intention of the Pakistani armed forces, who have no intention for peace in the area. Now, he further said that any misadventure attempted from Pakistani side in the Sir Creek area will receive a decisive response, that both history and geography of the area will change for good. He added that Pakistan should remember that one route to Karachi also passes through the creek. Rajnath Singh, the Defence Minister, saying that Pakistan is building military infrastructure at the Sir Creek region. Defence Minister, speaking in Gujarat, said that even after 78 years of independence, a dispute over the border in Sir Creek area is being stirred up. India has made several attempts to resolve it through dialogue, but there is a flaw in Pakistan's intentions. Its intentions are not clear. The way in which the Pakistani army has recently expanded its military infrastructure in the areas adjacent to Sir Creek reveals its intention. The Indian Army and BSF are jointly and vigilantly protecting the borders. साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। इसी प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो या किसी भी तरह की समस्या, हम सबसे निपटने और जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। The Defence Minister also added that during Operation Sindoor, the armed forces demonstrated that the forces are challenging India's sovereignty no matter where they are hiding, and had power to find them and eliminate them. So he is speaking about the forces challenging India's sovereignty and India's ability to fight back. He says that India will find them and eliminate forces that challenge India's sovereignty. He said that during Operation Sindoor, Pakistan made a failed attempt to breach India's defence system near Leh to the area of Sir Creek as well. He added that India's armed forces completely exposed Pakistani air defence system and sent a message to the world that India's armed forces can inflict heavy damage on Pakistan.
whenever and wherever and however they wish. My colleague Anju Nirvan is joining us live with more details. Anju Nirvan, Rajnath Singh, the defense minister, they're suggesting that Pakistani army is building up infrastructure near Sir Creek line. जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि राजनाथ सिंह ने एक कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान को ये बोला है कि आजादी के 78 साल बाद भी सरक्रिक की जो सीमा है, जो बॉर्डर एरिया है, वो अभी भी वहां पर जो है चीजों को लेकर क्लियरिटी नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी बोला है कि तनाव बना हुआ है। भारत ने कई बार बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर सवाल बना हुआ है। और हाल ही में पाकिस्तान सेना द्वारा जो सरक्रिक से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर सैन्य ढांचे यानी कि डिफेंस, उनके जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको वहां पर उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे में पाकिस्तान की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाया और रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि भारतीय सेना और बीएसएफ यानी इंडियन आर्मी और जो हमारी बॉर्डर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो वहां पर सतर्कता के साथ वहां पर बनी हुई है, वहां पे उनकी डिप्लॉयमेंट है, वहां पर एरिया की रक्षा कर रही है। अगर पाकिस्तान की ओर से सरक्रिक क्षेत्र में किसी भी तरह की एक्टिविटी होती है या वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो एक निर्णायक जवाब यानी कि एक फैसला लेने वाली बात कही उन्होंने कि निर्णायक जवाब जो है वो भारत की ओर से दिया जाएगा, जिसमें इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। उन्होंने बोला कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल जाएगी। तो इस तरीके का एक कड़ा स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि 1965 के युद्ध का जिक्र भी किया उन्होंने, और भारतीय सेना ने लाहौर पहुंचने की जो ताकत है वो दिखाई थी। और 2025 में हर किसी को ये याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंधु भारत ने किस तरीके से किया, और भारत की जो फोर्सेस है वो कराची तक भी पहुंचने का मादा रखती है। तो इस तरह की एक स्टेटमेंट, हार्ड स्टेटमेंट जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को देने की कोशिश की है सरक्रिक के मामले में। All right. That's my colleague Anju Nirvan there explaining to us what the defense minister said while speaking in Gujarat. Anju, stay with us. Let's quickly listen into Rajnath Singh, the defense minister. साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। कराची का एक रास्ता क्रीक से भी होकर गुजरता है। अंजू, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बढ़िया और कड़क जवाब एक तरीके से कि सर क्रीक में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, भारत की नज़र उस पर है, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहेंगे तो ये कहना सही होगा इस वक्त कि आप पीस नहीं चाहते हैं रीजन में। जी बिल्कुल, राजनाथ सिंह का ये बयान इस बात की ओर संकेत भी कर रहा है कि पाकिस्तान की क्या मंशा है, वो बताने की कोशिश की। लेकिन स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि भारत की क्या ताकत है। एक तरफ भारत जो है वो पाकिस्तान में भी ऑपरेशन कर सकता है, गुजरात पाकिस्तान से बहुत